All right, बच्चों, I'll just quickly take out the paper and let's make a start. हमने March 24 कर लिया था, posted all the videos on the YouTube channel. Whenever you want to access them, it's easy for you. Today we're going to do June के papers. Let us see summer 24 variant 11 किधर गया? Summer 24. अच्छा इसमें नहीं पड़े हुए. Interesting. 23 तक के पड़े हुए हैं और P2s पड़े हुए हैं, not the P1, sorry. So अस्सलाम वालेकुम सलाल. So we're going to do, चलें फिर फिलहाल हम डाउनलोड करते हैं नेट से ही, that is the only way to go. या चलें कोई और पेपर कर लेते हैं, that's totally okay. करने तो हमने सारे हैं ना 23 से 25 तक, so it doesn't matter हम कौन सा पहले करें. So 21, 22. चले जी, समर 23 मैं पेपर निकाल रहा हूं और variant 11, which is not our variant, but the syllabus is of course the same, so it's going to be the same thing. Assalamu alaikum everyone who's joined. So yes, summer 23 question paper 1, variant 11. Acha bachcho, when I asked you guys a question, do not leave the class. It's okay to make a mistake. It's human. We're here to learn. So please ये गलती ना कीजिएगा. थोड़े बच्चों को मैं चाहता हूँ individually हर बच्चे को practice मिले. So I'm going to start with the A's now. Okay जी, let's start. हमारे पास पहला बच्चा है अब्दुल अहद. अब्दुल अहद, पहला क्वेश्चन आपको दूंगा मैं. तसल्ली से at least take 15 to 20 seconds before answering. Let everybody read the options. Everybody has their own process, so no need to rush. What is a produced means of further production? कौन सा ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है? ठीक है, बाकी नेचुरल है, वो प्रोड्यूस्ड है. अब्दुल्ला, टेक योर टाइम. What is a produced means of further production? Abdullah, are you there? Waiting? No worries. Take your time. Capital, correct. Option A. Shabash. अभी जरा इसको अलिशबा वकास, aren't you already in the class बेटे अलिशबा? अच्छा, maybe she left and she's rejoining. Anyways, G. So capital is perfectly correct. Enterprise, risk-taking ability of entrepreneurs to combine all the resources, वो natural है, इंसान की ability है. Labor, mental and physical efforts, again human beings की, again natural है. Land, all natural resources, minerals, आपकी fish, oceans, everything that is on the surface of earth, above it and inside it counts as land. So capital is the only factor of production that needs to be produced. Up next question goes to, let this kid enter. Next question goes to Ahmed Farooq from City School. Ahmed Farooq, a hospital management board decides to reallocate $800,000 from its $1.2 million new building budget to spend on cancer care. What is the opportunity cost of this decision? सोचो क्या गिव अप किया जा रहा है by reallocation of these resources. तसल्ली से देखो मेरा बेटा, take about 15 seconds. अरे मेरा बेटा, 800,000 is private cost जो वो खर्च कर रहे हैं. Opportunity cost is the next best alternative given up. क्या नहीं बन रहा वो देखो ना मेरा बेटा.
टेक योर टाइम, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के. Ahmed, waiting for you. Take your time and give me the correct answer, which you think it is correct. Arham, wait, bete. Let Ahmed come with the answer. Ahmed, bete. बेटे क्या नहीं बन पा रहा. उन्होंने $8 लाख उठा के कैंसर केयर पे लगा दिए हैं. क्या नहीं हो पाएगा अब. अहमद, come on, talk to me. This is how we learn. जी मेरा बेटा. एक बार जरा स्टेटमेंट मेरे साथ समझो. ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड, उन्होंने क्या फैसला किया कि $8 लाख अपने $1.2 मिलियन के बजट में से नई बिल्डिंग्स के ऊपर जो लगना था वो हटा के उन्होंने कैंसर केयर पे लगा दिया. क्या नहीं बनेगा. क्या कर रहे हो अहमद. अहमद, इट्स नेवर इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कॉस्ट. आप समझ नहीं रहे बात को. अहमद, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द लॉस ऑफ सम न्यू बिल्डिंग्स. बजट था नई बिल्डिंग्स के लिए, उठा के कैंसर केयर पे लगा दिया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, न्यू बिल्डिंग्स कम बनेंगी. कब बोला था. आपने पहले डी बोला था जब मैंने बी समझा था. अच्छा, शुरू में नहीं. अच्छा, बी बोला है. चलें, बट इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड प्लीज आई रिपीट, इट्स एन ऑनलाइन क्लास. यूज phonetics. Don't say D and B. It's impossible to decipher. Say ball, dog, David, something like that. All right, G's, let's move on. Next question goes to uh, चलें, Adil Imran आ गए. Good. Adil, you've been very absent. Next question goes to Ahmed from City School. Ahmed, diagram shows the change in a country's PPC curve. Excuse me, I have to enter the kid. G. Ahmed, diagram shows the change in a country's PPC from XX to YY. XX पे थे आप, अब आप YY पे आए हैं. ड्रिंक्स कम बन पा रहे हैं और फूड ज़्यादा बन पा रही है. What could explain this change, Ahmed? Take sweet time, 10-15 seconds. अंदाजा मिलते हो. Ahmed, are you there, मेरा बेटा? C, perfect. Productivity rose in food production and fell in drink production. Why does PPC shift? Due to change in quantity and or. ठीक है, ये हो चाहिए कितने 200. uh, due to change in quantity and or quality of factors of production. Let's reject the other options. A क्यों ठीक नहीं है. Consumer chose to consume more food and less drink. That would have caused a movement along the curve. वो तो reallocation of resources है. Government tax food production and subsidized drink production, उससे उल्टा इफेक्ट आता. फूड कम बनती, ड्रिंक्स ज्यादा. तो इसमें हमारे ड्रिंक्स कम बन रहे और फूड ज्यादा, तो इट्स रॉन्ग. D, there were more imports of food and more exports of drink. Uh, First thing, PPC has got nothing to do with exports. Even लिखा हुआ भी उन्होंने उल्टा हुआ है. तो don't you worry about that. That's how it works. ठीक है. Import, export are not to do anything with PPC. Number 4. Now I have Adil Imran. Adil, don't leave the meeting, मेरा प्यारा बच्चा. Confidence के साथ, गलत भी हो जाए, it's okay. We're all learning here. A factory manufactures chairs. The manufacturing process is divided into a number of tasks. What is a likely disadvantage of this division of labor? Adil, take your time, 10, 15, 20 seconds. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैं क्लास में.
हाँ जी, मैं क्लास में तो मैंने ना 9 बजे तो बात करे है। जी मेरा बेटा आदिल, तसल्ली से देखो, फाइनल करो। दोनों ऑप्शंस गलत चूज की थी, आपको डिवीजन ऑफ लेबर याद ही नहीं है। वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर इज। Decrease in motivation. Yes, let's enlighten Adil on what division of labor is. Adil, division of labor is when a production process is split into many tasks and each worker or groups of workers specialize on one of those tasks. फिर रोज वही काम कर करके वो एफिशिएंट हो जाते हैं, आउटपुट बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज दे डूइंग इट अगेन एंड अगेन, क्वालिटी भी बढ़ती है। Albatta, they're repeating a task every day, they feel demotivated and bored. Sometimes capital replaces labor because division of labor में machinery साथ में आ जाती है तो unemployment आती है। थोड़ी सी products become very standardized तो choice कम हो जाती है consumers की। Now you're clear on division of labor, आदिल? Yes, please, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ए ओ लेवल में भी आप लोगों ने पढ़ा और A1 में भी दोबारा पढ़ा, राइट right. ए होगा डिक्रीज इन मोटिवेशन, शाबाश। लेट्स मूव ऑन। तो देखो मैं बताता हूं बार बार के एमसीक्यूज 90% आर फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन। अलिशबा वकास मेरा बेटा, कॉन्फिडेंटली which row correctly describes the relationship between two goods implied by the value of cross elasticity of demand? सोचो माइनस साइन कौन सी गुड्स हैं, पॉजिटिव साइन कौन सी हैं। फिर ग्रेटर देन वन तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लेस देन वन वीक रिलेशनशिप। तसल्ली से पिक कीजिए। बहुत जल्दी बता दिया लिशबा, करेक्ट माशाल्लाह, सी इज करेक्ट। वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्लस मींस सब्स्टिट्यूट, 0.5 मींस वीक सब्स्टिट्यूट्स। थोड़ा सा 10-15 सेकेंड प्लीज वेट किया करें। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। ए में कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने सही लिखा था बट वीक नहीं है, दे वेरी स्ट्रॉन्ग। 2 means 1% change in price of, let's say, bats and 2% change in price of balls, so they have a very strong interrelationship. बी में उन्होंने सब्स्टिट्यूट भी गलत लिख दिया, वीक सही लिखा क्योंकि लेस देन वन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी, दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। डी में उन्होंने स्ट्रॉन्ग सही लिखा, ग्रेटर देन वन है बट दे वर नॉट कॉम्प्लीमेंट्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप था, दे वर सब्स्टिट्यूट्स। कई बच्चे इधर यहाँ पे पॉजिटिव में कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर डिमांड बैट्स की बढ़े तो बॉल की भी नहीं बढ़ेगी। Correct. But right now we're talking about cross elasticity of demand, which is the change in price of one good affecting the quantity demanded for the other. So basically, अगर पेप्सी महंगी हो रही है तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, बोथ गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरह इसको क्लियर रखिएगा। और कॉम्प्लीमेंट्स में गाड़ियां एंड पेट्रोल, गाड़ियां महंगी हुई हैं, प्राइस बढ़ी है, पेट्रोल की डिमांड गिरेगी, नेगेटिव रिलेशनशिप। Everyone 100% clear? Great. Let's move on. By definition question hai, what does consumer surplus measure? If I give the definition, everybody will know the answer. But let's go to the next kid, Amina Abu Bakr. Amina, what does consumer surplus measure? Please read all the options. Take about 10 to 15 seconds. It is D, but why are you saying is it D? Be very confident, say it is D. It is D as in David. बिल्कुल सही है। Definition क्या है consumer surplus की? The difference between the price consumers are willing to pay and what they actually pay. So the consumers gain from purchasing a good at a price below what they are willing to pay is consumer surplus. I'm not very impressed with your MCQ skills. Uh, आपने जितने भी अभी तक किए हैं हमारी क्लासेस में सारे सही किए हैं, तो कीप इट अप मेरा बेटा एंड बी रेगुलर एज यू आर। लेट्स मूव ऑन। अरहम शाहिद लकास, नंबर 7। When the price of a good X is $2, the quantity supplied is 100,000. PES of the good is X is 0.8 in short run, 1.4 in the long run. Price of good X increases to $2.2. What is the increase in quantity supplied
of good X between the short run and the long run. अरहम ज़रा टाइम लीजिएगा. It is a tough question. You need a lot of calculation. So take your time. और अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैंने वैसे भी सॉल्व करना है, so I can solve it for you guys. चले मैं करवा देता हूँ बच्चों. You are right about that, but you're taking the cope out, which is okay. इतना चलता है. राइट जी, लेट्स नाउ गो टू दिस डॉक्यूमेंट एंड सॉल्व इट. और प्लीज बच्चों, ये क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है, जरा कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझो. हमें कैलकुलेट करनी है पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. उसका फॉर्मूला क्या होता है? somebody quickly tell me. शाबाश ईमान. बाकी बच्चे भी ऐसे ही बोला करो. परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर. प्राइस चेंज इज वेरी इजी. इट वाज 202.00, इट बिकेम 2. कितनी परसेंट? शाबाश. लेट्स डू इट विद द प्रॉपर फॉर्मूला. न्यू वैल्यू 2.2 minus old value 2 over old value into 100. So this will be 0.2 over 2 into 100. As Iman said, it's 10% rise in price. तो हमारे पास नीचे वाला वेरिएबल 10% आ गया. अब 7% साइन नहीं लगाना होता बाद में. पीएस इज नॉट अ परसेंटेज वैल्यू एट द एंड. एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें बताएंगे पीईएस के फिगर्स. 0.8 in short run means 1% change in price will cause only a 0.8% change in quantity of the goods supplied. तो अब कितना चेंज है? 10%. तो 10 इंटू 0.8, 8% सप्लाई बढ़ेगी. 100,000 वॉज ओरिजिनल सप्लाई, उसका 8%. यस शाबाश. 8% कैलकुलेट करो. 8,000 सप्लाई बढ़ गई शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में इट इज 1.4. तो 10 इंटू 1.4, 14%. शाबाश ईमान. 14% यानी 114 पे पहुंच जाएगी. कितना चेंज है? 6,000. ऑप्शन ए. शाबाश ईमान, you're such a pleasure to teach. A option. Anyone who's not understanding this? Arham, are you clear मेरा बेटा? Anyone not clear? जी मेरा बेटा, 8,000 तक समझ आ गया. लॉन्ग रन में पीईएस इज 1.4. अब 10% प्राइस बढ़ेगी तो कितनी सप्लाई बढ़ेगी? 10 इंटू 1.4, 14%. 1 लाख ओरिजिनल सप्लाई थी, 1,14,000 पे पहुंच जाएगी. उसने कहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन. 1,08,000 से बढ़ के 1,14,000 इज 6,000 इंक्रीज. आर हम क्लियर और नॉट? Anyone not totally clear? Because this question sorts out so many other questions. Please do not be shy, ask. Okay, I'm happy to do it all over again, Bacho, if you want. All right, I believe you have your best interest in your heart. Excellent, let's move on. Next one is Arham Shahid ke baad. Arham Shahid nahi aapka hi hai because last question you bailed out. Number 8. Diagram shows the European market for diesel fuel and the original equilibrium is at M. Europeans want low emission cars, and therefore the demand for diesel fuel has decreased from D1 to D2. Which area represents the new producer surplus for companies supplying diesel fuel? CJHN. You should have taken a little bit more time, but very well done. शाबाश. एक दफ़ा मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ और उस पर एरिया शो भी कर देता हूँ for some students. Producer surplus is the difference between price producer is willing to sell at and what he actually sells at. तो supply curve is the willingness curve. अब हमारा यहाँ पे equilibrium बना था. So producer surplus is area above the supply curve below the price line. This is JHN. और अगर वो consumer surplus पूछता तो वो
डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर होता है. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? एक आधा क्वेश्चन लाजमी कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे आता है. So जी, next, so far as a class, you guys have got, I think, only one answer wrong. So keep up the good work. Iman Zahid. Okay. In which situation is the demand for a product said to be price elastic? Take your time, Iman. 10 second kam as kam. B as in David, very good. A decrease in price brings about an increase in revenue. 90% students tend to choose option A. The quantity demanded responds to a change in price. No. Quantity demanded always responds to change in price, even in inelastic demand. Yes, it responds lesser in proportion. So the best answer will be read all the option, जिसको reject ना कर सको. Increase in price brings about an increase in revenue. Decrease in price brings about an increase in revenue. I will just, for my satisfaction, draw it and show you. Demand curve elastic is always kind of flat. Let's see, $10 price, 100 units were being sold, revenue was 1000. $8 price, almost double hogi ye quantity, 200. Now the revenue is 1600. So revenue बढ़ता है जब demand elastic हो और आप price कम करें. Anyone unclear? Good work. Let's move on. Faik Masood, somebody is looking to join the class. Let me let them in first. Faik Masood, मेरा बेटा, आपका क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस के साथ. ओके जी. Golf club membership fees in Singapore have risen as a result of restriction on travel to cheaper golf courses in the neighboring countries and closure of some local golf courses. The supply of golf club membership is determined by the current number of courses. If the original equilibrium was X, which point shows the result of these changes? Five, take your good 20-25 seconds. It's a tricky question. एक एक स्टेप सॉल्व करना. रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कि आप सस्ते गोल्फ कोर्स पे 7 कंट्रीज में नहीं जा सकते. उससे क्या शिफ्ट होगा, पहला ये करना. फिर कुछ गोल्फ कोर्सेज बंद हो गए हैं सिंगापुर में, उससे कौन सा कर्व शिफ्ट होगा. डोंट वरी अबाउट इट्स इन इलास्टिक नेचर, वो जैसी भी हो हमें कोई मसला नहीं है. टेक योर टाइम. फाइव कैसे किया आपने, सप्लाई आपने सही कम की है. दूसरा फैक्टर नहीं देखा, डिमांड क्या होगी. हाँ, तो दोनों शिफ्ट करो ना. आपने सिर्फ सप्लाई शिफ्ट की है. बी एज इन बॉल, परफेक्ट. हुआ क्या जी, जब यू नो कुछ गोल्फ कोर्सेज बंद हुए, सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट. परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों है, देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्फ कोर्सेज ना, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. कुछ और बंद हुए, इट शिफ्टेड टू द लेफ्ट, S2 पे, ए पे आ गए हम. उसके बाद आपका जो है demand बढ़ी थी because people cannot travel to nearby countries to play golf cheaper. They'll have to play in Singapore. Demand बढ़ेगी, B पे आ जाएंगे. Everyone 100% clear? Excellent. Let's move on. Another demand supply question. They are very important. अब मैं एक बच्चे को एंटर कर दूं. सुभान माय डियर, टाइम पे आया करो बिकॉज बहुत कुछ मिस हो जाता है. फरीद ससोली, कॉन्फिडेंस के साथ फरीद, गिव अप नहीं करना, डरना नहीं है. Diagram shows the demand and supply curve for solar energy in India. Initial equilibrium is at X. Indian government increases the subsidy to solar energy producers.
पहला अभी सोच लो कि सब्सिडी से कौन सा कर्व किस साइड पे शिफ्ट होगा. At the same time, there is rise in price of alternative sources of energy. दूसरे एनर्जी के जो सोर्सेज हैं सोलर के अलावा, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, वो महंगे हो गए. वो हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. उससे सोचो कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा. गेट टू द फाइनल इक्विलिब्रियम. टेक 10, 15, 20 seconds. दोबारा ऊंचा बोले जरा. आवाज नहीं आई. अच्छा, बी और डी जब बोलो तो बॉल डॉग बोला करें ताकि मुझे क्लियर हो. बी फॉर बॉल. फरीद, मुझे ये लग रहा है, लेकिन बता दो. शाबाश फरीद, प्राउड ऑफ यू. Subsidy will shift supply curve to the right, will come to this point. Then alternative sources of energy getting expensive, positive relationship. Substitute महंगा हुआ, हमारा demand curve right पे shift होगा and we'll land on B. Well done Fareed, शाबाश. Any questions? Anyone? Excellent. Let's move on to the next question. Very easy, simple. Just in diagrams की शक्ल देख के आप लोगों ने डरना नहीं है. Hassan Ahmed, LGS phase 5. A specific tax is placed. G. G. A specific tax is placed on the sale of bottles of lemonade. In the diagram, S is the supply curve before the imposition of tax, and ST is the supply curve after tax. Which distance represents the specific tax on each bottle? Shabash. You should have taken a little bit more time, but Hassan, very good. Hassan, आपके दोनों पेपर अच्छे हो गए, P2, P4? अच्छा चले. देन लेट्स वर्क ऑन द P1 एंड P3 सो वी कैन वर्क इट आउट. अब मेरे बेटे देखो, जब भी टैक्स का क्वेश्चन आए, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स एट न्यू क्वांटिटी इज ऑलवेज पर यूनिट टैक्स. और जब हम इसको इधर ले जाते हैं, मैं इसको लेबल्स कर देता हूं. ये जो है, प्रोड्यूसर्स को अब P2 प्राइस मिल रही है आफ्टर द टैक्स. कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं P1. और मैं इसको डिवाइड भी कर रहा हूं ताकि आपसे काफी सारी चीजें पूछ सकूं. अब बच्चों, एज अ क्लास मुझे बताते जाइए, व्हाट इज द बर्डन और इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को कितना हिस्सा पे करना पड़ रहा है. वेरी क्या बोला आपने, दोबारा एक बार बोलो. वाई कहाँ है? वाई कहाँ है? डब्ल्यू है बेटे. हाँ, आप लेटर गलत बोल रहे हो. P1 PWU. परफेक्ट. अब ईमान आप खामोश हो जाओ. प्रोड्यूसर्स पे कितना बर्डन गया है मेरे बच्चों? चार वेरिएबल्स बोलो. वेरी गुड. PU P2T. शाबाश. गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिल रहा है? ये दोनों हिस्से मिला दो. गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिल रहा है? कम ऑन गाइस. P1, P1W P2T. पूरा ये सब गवर्नमेंट को जा रहा है. ऊपर वाला हिस्सा कंज्यूमर्स बर्डन है, नीचे वाला प्रोड्यूसर्स बर्डन. गवर्नमेंट तो दोनों से टैक्स ले रही है ना. गॉट इट अरहम? Okay, let's move on. Number 13, let's speed up a little bit because हमारा टाइम कम है और क्वेश्चंस अभी बहुत पड़े हैं. इलियास सलाहुद्दीन, शाबाश. Demand for medical face masks exceeds supply during a disease outbreak. What is the most likely cause of this excess demand? कहाँ पे शॉर्टेज पैदा होती है?
डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, एक ही रीजन इसमें सही लिखी हुई है। इलियास, आर यू देयर? I don't think he is there, or either he's not willing to answer. Open hand G, anyone? C, price of medical face masks is fixed below equilibrium price. Maximum price कंपनी ने लगा दी, जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई हो गई। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी, लेकिन मैक्स प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम लगती है। सप्लाई कर्व तक जाओ, सिर्फ इतनी सप्लाई हो रही है और डिमांड Q1 है, तो शॉर्टेज पैदा हो गई। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दिस हैपेंड। सो उन्होंने कहा है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड? मैक्सिमम प्राइस, ऑप्शन सी। एनीवन नॉट क्लियर? इलियास, व्हाई डिडंट यू आंसर? Never be afraid of making mistakes. Okay, let's move on. Number 14 जी, अब जरा मैं ओपन करवा रहा हूं, टाइम थोड़ा है। Diagram shows the demand and supply curves for a good. The government fixes a maximum price of OP1. ईमान, stay quiet मेरा बेटा प्लीज। पहले बच्चों देखो कि क्या ये मैक्सिमम प्राइस अभी 2 मिनट पहले करवाई है, सही जगह लगी है कि नहीं। अगर सही जगह नहीं लगी तो ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी चलती रहेगी। सो समवन आंसर अदर देन ईमान। ऊंचा बोले। यस, सो क्या ऑप्शन है? टेल मी द ऑप्शन गाइस, आप सही बोल रहे हो। व्हाट इज द ऑप्शन? सी एज इन कैट। द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ वुड बी डिमांडेड एंड सप्लाइड। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था कि इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, नीचे का तो लॉ नहीं था ना। दिस विल नॉट इवन बी फॉलोड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जी, which statement correctly describes absolute advantage? One of you give me the definition of absolute advantage, please. फिर हम इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व करेंगे। गिव मी द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एब्सोल्यूट एडवांटेज इज। शाबाश। अब देखो अगेन ईमान इज रिपीटिंग ऑल द डेफिनेशंस एवरीथिंग। यू गाइस, आई नो सम ऑफ यू आर ब्रिलियंट। अलिशबा वकास इज देयर, देयर इज मेनी किड्स हु आर सो ब्राइट। क्यों नहीं आंसर देते हो? एब्सोल्यूट एडवांटेज इज when a country can produce a good with same amount of resources but more than another country. When a country can produce more quantity of a product with the same amount of resources. अब देखना आंसर्स कितना इजी हो जाता है। देखो कहां पे है। Yes, give me the answer. I've given you the answer with the definition. D option, yes, it is when a country's output of a good is greater per unit of resources than another country. तो मेरे बच्चों, प्लीज डू अ क्विक रिविजन ऑफ द सिलेबस, ठीक है? बिकॉज अगर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज का ही नहीं पता तो हाउ कैन यू पिक अप द राइट ऑप्शन? अब ईमान जैसे बच्चे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लाइक 5 seconds एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी, द टेबल शोज द इनकम एंड वेल्थ ऑफ यास्मीन। What is the value of Yasmin's wealth? Income is received again and again, right? Wealth is the stock of accumulated efforts. It's a stock concept. तो देखो उसके पास कौन सा stock of wealth इकट्ठा हुआ है। Anyone but take some time. 43,000, let me check. I think you're right. Property owned is 40,000. Saving in bank is 1,000. Shares are 2,043 और बाकी उसकी इनकम है। चिल्ड्रंस वेलफेयर बेनिफिट्स बार बार मिलेंगे। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स एवरी ईयर उसको मिलेगा। वेजेस मंथली, वीकली या डेली उसको मिलेंगी बार बार। दोज आर फ्लो कॉन्सेप्ट्स, दे आर इनकम्स। वेल्थ इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही जवाब था जी। विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू सफर ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, टेक योर टाइम दो। D option, fixed wage earners. Shabash. As a class, you guys have just made one, maybe two mistakes. Borrowers gain during inflation. Importers gain. Local goods महंगी हो रही हैं, their goods are cheaper. Producers
gain because aggregate demand is rising just above aggregate supply, they're making more profit. Fixed wage earners, their real income purchasing power will fall drastically. They will get poorer in real terms. Very well done. Which statement explains why the aggregate demand curve slopes downward? ये जो तीन मोटिव्स आपको पढ़ाए थे, एक दफा मैं रिवाइज करवा रहा हूं. एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. जब प्राइसेस गिरती हैं, कंज्यूमर्स कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज. उनकी रियल मनी परचेजिंग पावर, मनी बैलेंसेस की बढ़ जाती. नंबर टू, इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट. प्राइस लेवल गिरे तो एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, उनकी डिमांड बढ़ती है. इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, उनकी गिरती है. एक्स माइनस एम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड ऑन द कर्व बढ़ती है. प्राइस लेवल जब गिरता है तो लोग खुद चीजें खरीद लेते हैं, बैंक लोन्स की डिमांड कम होती है, वो इंटरेस्ट कम कर देते हैं, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. तो बेसिकली थ्री इफेक्ट्स: purchasing power effect, international trade effect, interest rate effect. Now you guys look into it and choose the right option. No, it's wrong. Oh, एक मिनट, let me check. As prices fall, fewer goods are imported. That is correct as well. As prices fall, real wealth rises, and so spending increases. Hmm, this is a good one. Let's see. A and C तो clearly reject हो रहे हैं. बी एंड डी में से देखते हैं. प्राइसेस फॉल, फ्यूअर गुड्स आर इंपोर्टेड. यस, दे आर चीपर अपने मुल्क में, तो व्हाई वुड वी इंपोर्ट दैट मच? As prices fall, real wealth rises, and so spending increases. I'm more inclined to go for D. It is very strong because उसमें exports की बात उसने नहीं की, तो मैं B को reject कर रहा हूँ. But I don't know why CI puts two correct options at times. These are both actually correct. Let's just look into it. Yes, it's D. But Iman, you were not thinking wrong. Just remember, खाली imports की बात हुई है, right? और एक्सपोर्ट्स की बात नहीं हुई. साथ में फ्यूअर गुड्स का वर्ड है, अमाउंट की बात नहीं हुई. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट्स व्हाई बी लुक्ड अ लिटिल बिट वीकर टू मी. आर यू क्लियर नाउ, ईमान? Yeah. Number 19G diagram shows aggregate demand and aggregate supply for an economy. Which change in subsidies and indirect taxes would have caused the change from AS1 to AS2? Very simple question. सप्लाई कम हो रही है एग्रीगेट, तो सब्सिडी क्या की होगी, टैक्स क्या किया होगा गवर्नमेंट ने? थिंक. सी, शाबाश, वेरी गुड, आई लाइक इट. आज ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं. वी नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन ईमान ओनली. वेरी वेल डन, शाबाश. नंबर 20. I hate these questions, but we have to do them. They're part of our syllabus. Unfortunately, इसमें जितनी प्रैक्टिस करो रिपीट तो होता नहीं है. The graph gives the percentage unemployed for all people aged 16 and over, and for young people aged 16 to 24. Percentage unemployed over the years उन्होंने दिखाई हुई है. What is the consequence for consumer expenditure on products consumed by 16 to 24 age group over the period 2010 and 2020? उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कीजिएगा. ऊंचा बोले. सी इज करेक्ट. देखो, पहले अनएम्प्लॉयमेंट गिरती रही है अप टिल 2018. तो इनिशियली राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट एज फॉलोड बाय अ फॉल, क्योंकि अब अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ रही है आफ्टर 2018 अप टिल 2020. सबको समझ आ रही है बात? Excellent. Let's move on. Good question. In the diagram, the intersection of AD and long run AS at point X represents the current macroeconomic equilibrium. Which point could represent the new equilibrium after the introduction of increase in retirement age? Retirement age आपने बढ़ा दी, 60 से 65 ईयर कर दी.
Now, what will happen? Which curve will shift? It's a very logical question. Think. जी, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी बिल्कुल। क्या ऑप्शन ले रहे हो? सी। सी बिल्कुल ठीक है। I'm a bit surprised कि उन्होंने aggregate demand भी shift कर दी, maybe because now the pensioners will spend more because they're not getting pensions, they're actually earning. But normally it's just a long run aggregate supply shift. So well done, guys. You guys are catching it very well. The table shows data on Japan's balance of trade in goods. What can be concluded from this data? Exchange rate दिया हुआ है yen to dollar, exports दी हुई हैं और imports बिलियन डॉलर्स में. What can be concluded from this data? तसल्ली से देखो. जी एनीवन? कौन सी ए? जापान डिमांड फॉर जापान एक्सपोर्ट वाज प्राइस इनएलास्टिक. पॉसिबल बट नॉट 100% श्योर. जी. और कोई बचा? मार्शल एंड कंडीशन फॉर जापान इज ग्रेटर देन वन. ये तो बिल्कुल गलत है बेटे. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मेजॉरिटी ऑफ जापानीज इंपोर्टेड वर. ना 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 ना, ये भी सही नहीं है. ठहरो ठहरो. बी बेटे, जापान करंट अकाउंट वाज इन सरप्लस. बहुत क्लियर है. एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से दोनों कॉलम्स में ज्यादा हैं. 17 में भी और 16 में भी. तो सरप्लस उनका एग्जिस्ट. करंट अकाउंट का वर्ड तो नहीं लिखा हो बेटे. बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है. करंट अकाउंट वाज इन सरप्लस. अच्छा, मैंने नहीं देखा. सही है सही है. देन इट हैज टू बी रॉन्ग. लेट्स सी. एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड. व्हाट हैज हैपेंड टू एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू? बढ़ा है. इंपोर्ट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, तो हम इन्हें इलास्टिक नहीं ले सकते. ठहरो. मेजॉरिटी ऑफ जापानीज इंपोर्ट्स वर एसेंशियल गुड्स. दिस इज आई थिंक यस. सी पे समझ आ रही है. मार्शल एंड कंडीशन ग्रेटर देन वन होती तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाता, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ता. इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ा है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ा है. सो आई थिंक इट हैज टू बी सी. लेट्स हैव अ क्विक लुक. Oh, see, due to an issue with question, the question have been removed from the question paper. This is where the problem was. इसलिए मुझे भी लग रहा था कि why is this such a weird question? So this has been removed by CI. We don't need to worry. It's an error wala question. Let's move on. G. The diagram shows PPC curves for two countries, India and Japan. Which combination of outputs will be achieved if each country specialized in the product in which it has comparative advantage? We have a very limited time left. Let's do the rest of the question, and if time permits, we'll come back to it. Let's go on. A country's currency has depreciated against all currencies of its main trading partners. How will the depreciation affect its terms of trade? बहुत सिंपल है मेरे बच्चों. डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स की प्राइस सोचो क्या हो जाती है, इंपोर्ट्स की क्या होती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर आता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड विल नो. बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड. रिलेटिव प्राइस. ऑप्शन सी. हमारी एक्सपोर्ट्स सस्ती हो गई. ठीक है. इंपोर्ट्स महंगी हो गई. हमारा सौदा अच्छा नहीं हो रहा बेटे. अरहम, डोंट गो टू बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन टर्म्स ऑफ ट्रेड has been mentioned. It's just the ratio of export prices compared to import prices in index form. Export price index over import price index into 100. When exports are cheaper, relatively imports are expensive, तो वो वर्सन होती हैं. When exports are relatively expensive compared to imports, वो बेहतर होती है. और हमने फॉलोइंग इट या थोड़ा सा और बताऊं? टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती हैं? रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू इंपोर्ट्स.
देखो, आप और मैं ट्रेड कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं वो महंगा है, जो मुझसे खरीद रहे हो वो सस्ता है। किसकी टर्म्स अच्छी हैं, आपकी या मेरी? अच्छा, आप मुझे अपना फोन बेच रहे हो 50,000 पे, मैं आपको अपनी बुक बेच रहा हूं 10,000 पे। किसका सौदा अच्छा हो रहा है, किसको ज्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है? कम ऑन, you're selling me your phone for 50,000, I'm selling mine for you to you for 10,000। किसकी टर्म्स अच्छी हैं? आपकी अच्छी हैं। तो अगर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, बेच रहे थे, वो महंगा है, और जो खरीद रहे हो वो सस्ता है, आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होती हैं। यहाँ पे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनकी प्राइस पे? यही तो गड़बड़ है। डेप्रिसिएशन नहीं पता आपको? पाकिस्तानी रूपी इस वक्त डेप्रिशिएट हुआ है, हमारी चीजें बाहर वालों को सस्ती लग रही हैं या महंगी? यस। और हमें इंपोर्ट्स, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो गई ना। एक दफा टर्म्स ऑफ ट्रेड जस्ट वन पेज है नोट्स में, रिवाइज कर लो। ओके, या नंबर 25, अ कंट्री विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही होती, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हो रही होती है, experiences a large surplus on the current account of balance of payment, what is likely to decrease as a consequence? तसल्ली से देखें। जी सॉरी, ईमान उषा बोले। सी, द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री। अब मेरे बच्चों जरा तसल्ली से सुनो, हमारी एक्सचेंज रेट क्या होगी जब करंट अकाउंट सरप्लस में होगा? एप्रिशिएट होगी। एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा बिक रही हैं, करेंसी की डिमांड ज़्यादा है। इंपोर्ट्स हम कम खरीद रहे हैं, दुनिया में हमारी करेंसी की सप्लाई कम है। फॉल इन सप्लाई, राइज इन डिमांड, बोथ विल कॉज आर करेंसी टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएटेड करेंसी से इंपोर्ट्स बिकम चीपर, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं होगा, सरप्लस मींस एक्स माइनस एम का इंजेक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री नहीं होगा, अ, आपके मुल्क में आएगा कैपिटल, क्योंकि अपना आपका जो सरप्लस आने से आपके मुल्क में अच्छे हालात होंगे। वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो सी भी गलत है। प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स विल बी चीपर। किसी बच्चे को समझ ना आया हो? Which measure is aimed directly at promoting international trade? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लो एक बार। सी, वाई ए इज रॉन्ग। एग्जिस्टिंग कोटाज डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? हम प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं। पहले 1,000 गाड़ियां अलाउड थी, अब सिर्फ 700 अलाउ कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग मोर प्रोटेक्शनिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहे। इंक्रीजिंग कोटा होता तो यस, दैट वुड हैव बीन क्लियर। Word decreasing quota seems like we're reducing protection. No, we're increasing protection. बच्चे समझ आ गया? Next one is too easy. What would be classified as a supply side measure? Supply side policies are aimed at increasing long run aggregate supply, education and training, research and development of new technology, infrastructure development, trade unions की power कम करना, infrastructure develop करना। ए होगा। देखा, बेसिक मैंने नाम लिया, आपको याद आ गया। फिस्कल डेफिसिट्स। हाँ, सी, आप लोगों ने तो ए टू में पढ़ा हुआ है, ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बॉन्ड्स जब गवर्नमेंट बेच रही होती है ओपन मार्केट में, उससे मनी सप्लाई कम हो रही होती है,
और वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, वैसे इनको A1 में ये देना नहीं चाहिए, बट स्टिल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ कंट्रीज नेशनल डेट? कंट्री का नेशनल डेट उधार क्या होता है? Yes, accumulated borrowing of the government, domestic and international. Very good. Number 29. A country experiences a fall in the value of exports, an increase in the value of imports of goods and services. What are the effects of these changes? Exports कम हो रही हैं, imports ज़्यादा हो रही हैं। पहले पहला कॉलम सॉल्व करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? अरे किसने राइज करवाई है? फॉल। और हम एक्सपोर्ट्स कम वैल्यू की जा रही हैं, इंपोर्ट्स मुल्क में ज्यादा आ रही हैं, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, मुल्क में कम हो रहा है। सर्कुलर फ्लो डाउन हो रही है, एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, एक्स माइनस एम नेगेटिव हो रहा है। गॉट इट? अब तसल्ली से, जल्दी नहीं करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सिंपल है। वर्सन तो कौन सी ऑप्शन रह गई हमारे पास? B as in ball. Shabash. Last question, and then I'll see the time left and go for the comparative advantage question. A government orders its central bank to buy its domestic currency on the foreign exchange market in the belief that this will improve the balance of payment. What does this suggest? तसल्ली से देखो। The government has a budget deficit. Okay, let's wait for the others. अगेन दे शुडंट हैव गिवन इट इन एएस। ये डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स पे जब हम बाय करते हैं, इसका मतलब है हम अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करवाना चाह रहे हैं। अप्रिसिएशन से कब हमें फायदा होगा? लुक अगेन मेरे बच्चों, A, demand for countries' export is price inelastic. I don't know why they kind of put A2 concepts into A1 questions, but later on they remove it and they cancel it out. But well done as a class. You guys did really well today. Keep it up, and let's now close the class unless you guys have any